which can every regular Excel user can use in their work. So there are various tools which can every regular user working with Excel can relate and use it in their work. We can see here first is subtotal. Subtotal, we know how to do sum, average, minimum, maximum of the given data, but these formulas sum, average, minimum, max do not work with filter. How it does not work, let us do. I am doing sum of this quantity column. क्वांटिटी का मैंने टोटल किया. Now I put filter in this data sheet. So now I want to see what is the total number of quantity sold to company ABC. Whether it is mouse or keyboard, I want to see the total quantity of products sold to company ABC. Then simply I choose company ABC from the filter. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. For filter, you select the data, select your data sheet. Yes, ma'am. I'm going into that only. Uh, First, you select the data and go into the home tab, find and sort and filter option. Here it is the option filter. You click on filter, then filter option will come. Now I want to check the total quantity of products sold to company ABC. So in filter I chose ABC. Now you can see the total is not coming. I want to make it dynamic, means whenever I choose any company, it must show the total of quantity, price and amount. But so the formula of sum, average, minimum, maximum and other formula do not work with the filter. So what will I do? I'll give the formula of subtotal. For giving the formula of subtotal, you simply click equal to subtotal, click on subtotal. Then it will ask for what formula, what function you are searching for. Average, count, count a, maximum, minimum, product. I want to do sum. So the number of sum is 9. So I simply click on sum or write 9 here. 9 is the serial number of sum. You simply click on sum or give the 9 number. Then comma. It is asking for reference number. Reference number means from which column you want to do the total. So I want to make total of from number 4 to number 12. So I simply chose the range, which range I am going to do total. I have selected the range. Now bracket close and enter. Now you can see here the formula subtotal is working in this line. Okay, and here the simple sum formula is coming. Here it is subtotal, here it is sum. Now I am doing again filter. Now you can see the company ABC's total quantity is
6,000, but in price or in amount the total is not coming correctly. The total must be 11,23,000, but in total column it is coming 24,98,000. So the sum formula is not working. So I simply drag the subtotal formula into all columns. प्राइस का तो टोटल नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दे रहा हूँ. क्वांटिटी एंड सम, इसको अगर हम XYZ कंपनी के लिए भी सर्च करेंगे तो ये डायनामिक हो जाएगा, तो ये हमेशा चेंज होते रहेगा. If I want to check how many keyboards are sold only, then I simply check the keyboard option and you see the result here. So subtotal formula is a very useful formula. It work with filter also. In place of sum, you can use the subtotal formula also. Similarly, the subtotal for average it is 9, 1, count 2, whatever formula you want to give, just put the number. If you do the average, put number 1 and equal to, it will give the average. Okay. Another powerful formula in Excel is VLOOKUP. VLOOKUP does what? It finds any data from for a given value. तो इस सीट में जाने से पहले एक सिंपल चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत, ये जो ऊपर में हेडिंग है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है. I want this into vertically. I want this data into vertically. So what will I do? I simply select the data, copy the data, and wherever you want to paste the data, you select the cell, go to the paste option. In paste option you can see paste special. Okay. In paste special you can see one option there is transpose. You check the transpose box and click OK. Then it will paste horizontally. Vertically. It can be vice versa. You can copy it, and if you want this data into horizontal line, simply repeat the process. Go to the paste special, transpose, check OK. It will come horizontal. So from paste special option, transpose option, you can do the special pasting from horizontal to vertical or vertical to horizontal. Okay. Now I am making a MIS report. So I make मुझको करना क्या है एक्चुअली, जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालूंगा, यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट, रीजन, पार्टी, आइटम, यूनिट्स, कॉस्ट एंड टोटल. जैसे ही मैं यहाँ ऑर्डर नंबर डालूंगा, उस ऑर्डर नंबर से रिलेटेड जो भी डेटा है मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए. मैं एक MIS रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो उसमें मेरा क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी ऑर्डर नंबर मैंने क्लिक किया या सेलेक्ट किया, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए. जैसे उस ऑर्डर नंबर का ऑर्डर डेट क्या है, तो यहाँ पे हम लोग VLOOKUP यूज़ कर सकते हैं. VLOOKUP के लिए इक्वल टू VLOOKUP वैल्यू में किस वैल्यू को ढूंढना है. ये एक टेबल है जो मेरा, ये पूरा एक टेबल जो है,
इसमें किस वैल्यू को ढूंढना है मुझे, तो मुझको ढूंढना है ये वैल्यू, ये ऑर्डर नंबर को ढूंढना है, इस वैल्यू में से ऑर्डर नंबर को ढूंढना है और इसके सामने जो भी रिजल्ट है वो दिखाना है। टेबल एरे, यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है, सब क्राइटेरिया को लिखते जाना है। लुकअप वैल्यू में किस वैल्यू को ढूंढना है, टेबल एरे, टेबल एरे में हमको ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। किस टेबल में से मुझे डेटा चाहिए, इस टेबल में से A1 से H20 तक का टेबल में से मुझे डेटा चाहिए। फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ये कॉलम A है, B जो है वो 2 है, इसका इंडेक्स नंबर, तो A हो गया 1, B 2, तो ऑर्डर डेट जो है वो नंबर 2 कॉलम इंडेक्स, उसका इंडेक्स है 2, जैसे रीजन के लिए 3, पार्टी के लिए 4, तो वो नंबर मुझे यहाँ पे देना है। तो ऑर्डर डेट है नंबर 2 कॉलम में, तो मैंने सिंपली यहाँ 2 एंड कॉमा। अब यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो फॉल्स पे क्लिक कर दिए एंड ब्रैकेट क्लोज एंड क्लिक इंटर। सो यू कैन सी ऑर्डर डेट हैज़ कम। ओके, तो सब में ऐसे करके फॉर्मूला लगाते जाएंगे एक एक करके। इसमें अगर 3 है, रीज़न मेरा 3 में है, तो यहाँ पे 3 सेम फार्मूला और 2 के जगह पे 3। लेकिन अगर बहुत सारा और भी लाइन है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद भी आंसर नहीं आएगा। आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम ड्रैग करते हैं तो एक एक सेल इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए K6 है, K6 मीन्स दिस, ये ऑर्डर नंबर का जो सेल है वो है K6। तो यहाँ पे हम K6 सेलेक्ट किए थे, लेकिन जैसे ड्रैग किए तो एक नीचे आ गया और यहाँ A2 से H21 हो गया, जबकि ओरिजिनल मेरा था A1 से H20। तो एक एक करके ये इंक्रीज हो गया। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो भी डेटा मुझे फिक्स चाहिए कि हर कॉलम में वो फिक्स रहे, तो उसको हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स कैसे करेंगे, उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड F4 दबा के उस डेटा को फिक्स कर देंगे डॉलर साइन से। उस डेटा को सिलेक्ट किया एंड F4, इसको भी फिक्स करना है। F4 से ये फिक्स हो गया। अब फिर से इसको ड्रैग करते हैं, आंसर फिर भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी ये 2 था, 2 तो ऑर्डर डेट है और यहाँ भी 2 है। तो सिंपली हमको रीजन चाहिए, तो रीजन 3 में है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। ये 4 में है तो इसको हम 4 बना देंगे। ऐसे करके ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे करके हम नंबर चेंज करते जाएंगे सबका, तो हो जाएगा। लेकिन हम नंबर कितना बार चेंज करेंगे, हम चाहते हैं कि एक बार हम फॉर्मूला लगाएं और वो हम ड्रैग करें तो डायनेमिक हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक रो का फॉर्मूला होता है, उसको इसी में यूज़ कर लेंगे। रो फॉर्मूला क्या है हम बता रहे हैं, इक्वल टू रो ब्रैकेट क्लोज ओपन एंड क्लोज अगर करते हैं तो यहाँ एक नंबर आ गया, ये नंबर 8 आ गया। मीन्स ये ऊपर से लेके कितना नंबर रो में है, ये जो सेल है, ये पार्टिकुलर सेल जो है, इसका रो नंबर क्या है, ये निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो रो नंबर है 8। वैसे कॉलम अगर हम जानना चाहते हैं कि ये सेल का कॉलम नंबर क्या है, तो फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू कॉलम, तो इसका कॉलम है 14, 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इसको हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इस 2 को हटा के हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं रो।
फॉर्मूला हमने लगाया रो, तो इस रो में जो है ये रो का वैल्यू आएगा कितना है, एक्चुअल में आएगा कितना, इस रो का वैल्यू है 7, लेकिन मुझे चाहिए 2, ऑर्डर डेट के लिए मुझे चाहिए 2 और यहाँ पे है 7, तो ये यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो होगा कैसे? इसका वैल्यू है 7 लेकिन मुझे चाहिए 2, तो सिंपली इसमें से -5 कर देंगे, तो ये डेट आ गया। उसके बाद इसको एक बार में ड्रैग कर देंगे तो सारा वैल्यूज़ एक बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर है 50001, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है यहाँ पे आ गया। अगर इसको हम चेंज करते हैं 500010 में, तो ये सारा डेटा ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। तो वी लुकअप में यही हम लोग करते हैं कि किसी एक वैल्यू को एक टेबल में ढूंढते हैं और उसके पास में, उसके राइट साइड में जो भी डेटा रहता है उस डेटा को हम लोग फाइंड कर सकते हैं वी लुकअप फॉर्मूला से। ओके, अब लेकिन यहाँ जो ऑर्डर नंबर है इसको हम चाहते हैं कि यहाँ एक लिस्ट बना दे ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े, लिस्ट बना दे ताकि हमको यहाँ बार बार लिखना ना पड़े, जस्ट हम लिस्ट में से ऑर्डर नंबर को हम सेलेक्ट कर लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, अच्छा वी लुकअप यहाँ पे ख़त्म हो गया, लिस्ट के लिए लिस्ट अलग से है। लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि डेटा में जाएंगे, डेटा टैब में, यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स में अलाउ करेंगे लिस्ट को, और यहाँ पे सोर्स, सोर्स मतलब किस चीज़ का मुझे लिस्ट बनाना है, तो ये ऑर्डर नंबर का लिस्ट बनाना है, तो इस जितना भी ऑर्डर नंबर है सबको हम सेलेक्ट कर दिए A2 से लेके A20 तक। ओके, तो यहाँ पे आपका एक लिस्ट आ जाएगा, यहाँ से आप जस्ट लिस्ट पे क्लिक करिए और ये चेंज होते रहेगा जो भी डेटा चाहिए। now here you can see a data which is not in a format in which we can use the filter option, or you can see there is a data and in below it is total of above data, and then one cell line is blank, again a data, its total, and again blank. So this I want to get a clear data to store and to reconcile my ITCs, input tax credit. So what will I do? I simply filter my relevant data. So what will I do? I'll select any specific, any unique cell, means here you can see it is duplicate, same value twice, but in invoice number you can see it is not unique, it is invoice number and in below there is invoice plus total. So I found a unique value to filter. I'll select the whole column and we'll go to conditional formatting. Conditional formatting, then text that contain, whichever text I'll write here, का बटन ही अभी काम नहीं कर रहा है, वो स्मॉल में भी ले लेगा। अभी मेरा एक बटन ही काम नहीं कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, वहाँ मुझे ये लिखना पड़ेगा, वो ए लिख नहीं पा रहे।
ओके, तो अगर इस सेल में अगर जो भी लिखते हैं हम जो भी यूनिक चीज़ लिखते हैं, अगर किसी भी सेल में अगर टोटल लिखा हुआ है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर दिए, ये डेटा को हम हाईलाइट कर दिए। उसके बाद ब्लैंक को भी हमको हाईलाइट करना है, तो फिर से हम सेलेक्ट किए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। न्यू रूल में फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पे क्लिक करके नीचे फॉर्मेट ओनली सेल्स विथ, यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लैंक्स, जो भी ब्लैंक सेल्स रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब उसको फॉर्मेट करना है तो कोई एक कलर दे देंगे हम फॉर्मेट करके। ये चला गया न्यूट्रल में। उस ब्लैंक सेल जो सेलेक्ट किया उसको कोई एक कलर दे देंगे। कलर चूज कर लिया, तो ब्लैंक सेल जितना है वो भी मेरा सेलेक्ट हो गया, मतलब वो हाईलाइट हो गया। तो ये डेटा मुझे नहीं चाहिए और ये ब्लैंक वाला भी नहीं चाहिए, तो फिर हम पूरा डेटा को सेलेक्ट करेंगे, या सारा पूरा डेटा सीट को ही सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम फिर से लगाते हैं फ़िल्टर। यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन आ गया। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फ़िल्टर बाय कलर करेंगे। फ़िल्टर बाय कलर, तो जो जो कलर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये हेडिंग चाहिए तो हम ये हेडिंग रखेंगे ब्लू कलर, एंड नो फिल भी रखेंगे। तो ये चाहिए, और ये नो फिल भी। यहाँ पे देखिए जो जो सेलेक्ट नहीं था, जो जो हाईलाइट किया हुआ नहीं था, वो सारा डेटा आ गया। तो सिंपली इसको हम कॉपी करेंगे और किसी अलग सीट में इसको पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ये डेटा मेरा सॉर्ट हो जाएगा। हेडिंग भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं या जो भी टूल्स यूज़ करना चाहते हो, तो वो टूल यूज़ करके इसको एनालाइज और भी सॉर्टिंग्स कर सकते हैं। तो ये था फ़िल्टर बाय कलर। फ़िल्टर तो हम लोग नॉर्मली करते हैं, ये था फ़िल्टर बाय कलर। उसको पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब टेक्स्ट दैट कंटेन में जाके जो भी टेक्स्ट में जो वर्ड अगर रहेगा वो हाईलाइट हो जाए तो वहाँ पे सेलेक्ट करना है, और ब्लैंक सेल्स को भी हम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ओके, एक बहुत ही यूज़फुल टूल है एक्सेल में, फाइंड डुप्लीकेट का। बहुत टाइम क्या होता है कि गलती से या किसी भी ग्लिच के कारण एक इनवॉइस नंबर 2 बार इंटर हो जाता है। तो मैं जल्दी में अगर कोई एंट्री कर रहा है तो इनवॉइस नंबर ना चेंज करके बिल हम निकाल दिए, तो एक इनवॉइस नंबर 2 बार आ गया। तो अब डेटा मेरे पास बहुत लंबा डेटा है, तो हम डुप्लीकेट बिल अगर हुआ है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए सिंपली जिस कॉलम में मुझे डुप्लीकेट वैल्यू ढूंढना है तो उसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, या बी पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर से जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे ये 11 नंबर बिल 2 बार है, 22। जो जो बिल 2 बार रहेगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो उसके बाद अब अपना चेक कर सकते हैं कि यहाँ क्या ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या होना चाहिए, क्या सीरियल नंबर होना चाहिए, तो उसको देख के आप करेक्ट कर सकते हैं। और जीएसटी फाइलिंग से पहले ये एक बार चेक कर लेना चाहिए सभी को।
कि कोई गलत इनवॉइस नंबर नहीं जा रहा है या डबल तो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये डुप्लीकेट वैल्यू चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यूज। नेक्स्ट ऑप्शन फिल एज अबव। टाइम क्या होता है हम कि एक्सेल से अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो डेटा इस तरीके से आता है, मीन्स डेट अलग अलग है, इनवॉइस नंबर अलग अलग है, लेकिन जो सिमिलर डेटा है वो नहीं आता है। फर्स्ट कॉलम में आएगा, उसके बाद नीचे नहीं आता है। अमाउंट आ जाए, जो जो अलग अलग डेटा है, यूनिक डेटा जो है आ जाएगा, बट रिपीटेटेड डेटा नहीं आता है। तो मुझे वो रिपीटेड डेटा एक बार में, हम तो इसको कॉपी करके, अगर छोटा डेटा है तो इसको लोग कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर करके इसको फिल कर देंगे। इसको करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ करेंगे, यहाँ अगर हम फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ करेंगे, अगर हम सिर्फ निर्मल होल्डिंग सर्च करते हैं तो सिर्फ एक ही कॉलम आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 4 है निर्मल होल्डिंग के लिए। तो मुझे ये फिल करना होगा, तो एक ही बार में इसको कैसे फिल करेंगे? तो जहाँ जहाँ फिल करना, जो जो फिल करना उसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ डेटा है उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से मुझे चाहिए उस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम टैब में एकदम लास्ट में एक ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट, इसको क्लिक करेंगे। इसमें एक ऑप्शन है गो टू, गो टू में जाके स्पेशल में आके ब्लैंक, में क्लिक करके ओके। ये जितना भी ब्लैंक सेल था वो अभी सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद सिंपली हम लोग इक्वल टू दबाएंगे और जस्ट उसके ऊपर जो डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट होने के बाद इक्वल टू के बाद जस्ट उसके ऊपर जो डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल इंटर, यहाँ पे सिर्फ इंटर नहीं दबाना है, यहाँ पे दबाना है कंट्रोल के साथ इंटर। तो ये एक साथ में जो भी डेटा रहेगा वो आ जाएगा। ये सारा फिल हो गया। ओके, तो ये फॉर्मूला के ऊपर बेस होके ऊपर जो भी फॉर्मूला है, ऊपर जो भी डेटा है फॉर्मूला के बेस पे वही डेटा नीचे भी आ गया है। लेकिन इसको और पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? अगर समझिए ऊपर वाला हम डिलीट कर देते हैं तो नीचे वाला भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस ऊपर वाले के ऊपर ही बेस्ड करके है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी करेंगे, फुल कॉपी करके फिर वहीं पे पेस्ट कर देंगे, लेकिन पेस्ट स्पेशल करेंगे। पेस्ट स्पेशल में जाके, पेस्ट ऑप्शन में जाके पेस्ट स्पेशल, एंड यहाँ पे चूज़ करेंगे वैल्यूज़। सिर्फ मुझे वैल्यूज़ चाहिए, कोई फार्मूला नहीं चाहिए। वैल्यूज़ पे क्लिक करके आप ओके दबाइए, तो यहाँ पे फार्मूला सारा हट जाएगा, लेकिन वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन फार्मूला कॉपी नहीं होगा। तो ये फुल डेटा मेरा करेक्ट हो गया। यहाँ पे आप फिल्टर यूज़ करिए, यहाँ पे 4 निर्मल होल्डिंग, जो भी डेटा मुझे चाहिए वो हम यहाँ से चूज़ करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट ब्लैंक। यहाँ पे बहुत टाइम डेटा अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है, एक एक रो में डेटा है, उसके बाद पूरा ब्लैंक, फिर डेटा, फिर ब्लैंक। तो एक एक करके तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, या कंट्रोल करके दबा के बहुत सारा सेलेक्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो इसको हम एक बार में कैसे सारा ब्लैंक सेल्स को हटा दें ताकि हम सारा फॉर्मूला और फिल्टर अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए सिंपली जहाँ से मुझे चाहिए वो पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट के बाद फिर से वही ऑप्शन गो टू में जाएंगे, होम टैब, फाइंड सेलेक्ट के अंदर में गो टू, स्पेशल, ब्लैंक को सेलेक्ट करेंगे। ऊपर वाला डेटा लाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल टू दबा के ऊपर वाला सेलेक्ट करके कंट्रोल इंटर। यहाँ पे अभी ब्लैंक टोटल सेलेक्ट हो चुका है, तो सिंपली सेल्स को हटाने के लिए हम लोग दबाते हैं क्या,
कंट्रोल माइनस, शिफ्ट सेल्स अप, मतलब जो भी डिलीट हो जाएगा तो नीचे वाला सेल ऊपर चला जाएगा। यस, यहाँ पे जितना भी ब्लैंक सेल था वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो जो भी फ्रेश डेटा है, जो रेलेवेंट डेटा है, वो डेटा आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो इस तरीके से डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ यहाँ पे काउंट का कुछ ऑप्शन है। काउंट हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। एक डेटा सीट में कोई नंबर कितने टाइम्स है। तो जैसे काउंट का बहुत सारा ऑप्शन है। एक है काउंट, काउंट ब्लैंक। तो काउंट जो है वो क्या करता है, सिर्फ नंबरिक सेल्स को सेलेक्ट करता है। जैसे हम यहाँ से 7 से लेके 15 तक यहाँ पे डेटा है, इसको हम सेलेक्ट किए तो यहाँ पे देखें कि टोटल एंट्री 7 है, ब्लैंक भी है, ब्लैंक 2 है, उसके बाद टोटल 7 है। तो सिर्फ नंबरिक डेटा कहाँ कहाँ पे है, कितना नंबरिक डेटा है वो मुझे चाहिए। तो क्या हम चूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, काउंट ऑप्शन, इक्वल टू काउंट, और ये पूरा रेंज हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे 5 ऐसे सेल है जहाँ पे नंबरिक डेटा लिखा हुआ है। काउंट ए सिर्फ काउंट करता है एम्प्टी सेल्स को, नॉन एम्प्टी सेल्स को, मतलब जहाँ जहाँ एम्प्टी है उसको छोड़ के कहीं भी डेटा अगर है तो उसको काउंट कर लेगा। काउंट है ब्रैकेट ओपन, डेटा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली काउंट ब्लैंक है कि कितना ब्लैंक सेल्स यहाँ पे है उसको यहाँ पे काउंट करके बता देगा। काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, डेटा सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 2 सेल ऐसा है जिस पे कोई डेटा नहीं है, ब्लैंक है, तो कितना ब्लैंक सेल्स है तो यहाँ पे काउंट करके आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में यूज़ होता है। हम लोग जब वर्ड यूज़ करते हैं तो वर्ड में अगर कोई भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसमें अगर कुछ भी हम लिखते हैं तो उसको हमको लोअर फॉर्मेट या अपर फॉर्मेट या प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए शिफ्ट F3 दबाते हैं। लेकिन एक्सेल में ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। अगर कोई भी वर्ड सारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और मुझे उसको सभी लेटर्स को स्मॉल लेटर में करना है, लोअर लेटर में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोअर फॉर्मूला, इक्वल टू लोअर, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो भी कैपिटल में लिखा रहेगा सारा स्मॉल में हो जाएगा। इसको ड्रैग करिए। ठीक इसी तरीके से अगर अपर है, सारा ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, इसको सभी लेटर्स को मुझे अपर फॉर्मेट में करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपर फॉर्मूला। इसी से प्रॉपर रखना है। प्रॉपर में क्या होगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो इक्वल टू प्रॉपर। अगर सारा स्मॉल है तो उसको भी हम फिर से सारा अपर में या प्रॉपर में, या प्रॉपर को अपर लोअर में, किसी को भी किसी में हम चेंज यहाँ पे कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, लोअर अपर एंड प्रॉपर फॉर्मूला से।
एक लास्ट है जो एक्सेल से रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत टाइम यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ 10 लाख 1 मिलियन, तो इंटरनेशनल फॉर्मेट में ये लिखते हैं 3 3 छोड़ के, लेकिन हम लोग इंडियन फॉर्मेट में ये तो 1000 तक कॉमा रहता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा रहता है। तो बहुत टाइम एक्सेल में क्या होता है कि हम जो डेटा बनाते हैं वो जो भी डेटा लिखते हैं वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में नंबर सारे आने लगते हैं। तो वो एक्सेल का एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम लोगों को अपना कंप्यूटर में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो ये इंडियन फॉर्मेट में ये डेटा आने लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल के अंदर में एक ऑन क्लॉक लैंग्वेज रीजन, इसके अंदर में रीजन में क्लिक करेंगे। रीजन के अंदर पहला एक ऑप्शन है फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर में एडिशनल सेटिंग। यहाँ पे हम किस तरीके का डेटा मुझे चाहिए फॉर्मेट में, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स मुझे किस तरीके से चाहिए, कॉमा का फॉर्मेट क्या होगा, 3 डिजिट के बाद होगा या 3 के बाद फिर नहीं होगा या कहीं नहीं होगा। यहाँ पे हम ये जो इंडियन फॉर्मेट है इसको यूज़ करेंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लिए। करेंसी में भी हम ठीक इसी तरह से चूज़ कर लेंगे, डिजिट का ग्रुपिंग कैसे होगा, कॉमा कैसे कैसे मुझे चाहिए। तो यहाँ पे इंडियन फॉर्मेट हम यूज़ कर लिए, सेलेक्ट करके अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम एक्सेल में कोई भी डेटा लिखेंगे तो ये इंडियन फॉर्मेट में आ जाएगा। तो थैंक यू।